ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನದ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ ಆಚರಣೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಸಾರುವಾಗ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಆ ದೇವರೊಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯಾದ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಳೆದ ದಿವಸಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನೀನಿದ್ದು ನಾವು ಬೇಕಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ತಂದೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿವಸ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆಯೇ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನೀನಿರು ತಂದೆಯೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಚರ್ಚ್ ಮೆಂಬರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಯಪಾಲಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕಳೆದ ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂದೆಯೇ. ಅದಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರಾಧನೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ದೇವ. ನೀನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಜರುಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುಗಿದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ದೇವ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ದೇವ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ದೇವ. ಆಮೆನ್. तेरे जैसा जीना मुझको सिखा, तेरे जैसा चलना मुझको बता, तेरे जैसा जीना मुझको सिखा, तेरे जैसा चलना मुझको बता. तू है पवित्र, तू है महान, तू है पवित्र, तू है महान, तू है पवित्र, तू है महान, तू है पवित्र, तू है महान. ನಾವು ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೋಹನ್ನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 2ನೇ ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಿಸಯರಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿ ಸಭೆಯವನಾದ ನಿಕೋದನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದನು. ಅವನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ, ಗುರುವೇ, ನೀನು ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಬೋಧಕನೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು. ನೀನು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾರಲ್ಲಿಂದ ಆಗೋದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಮೇಲೆ प्रेज़ द लॉर्ड. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे हम. फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था. उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर के ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो नहीं दिखा सकता. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. आज जिनकी जुबानी आज परमेश्वर के वचन को हम सुनने वाले हैं, उनको हम लोग डिजिटली वेलकम करेंगे, जो हाथों से जो है एक बुके के रूप में बनाया है. मैं चाहूँगा कि जूलियट जहाँ कहीं भी है, जूलियट टीचर जो है इसको दिल से ग्रहण करे. भले डिजिटली है लेकिन दिल से ग्रहण करे और हमारे कलीसिया की ओर से, हमारे बच्चों की ओर से जो है एक वार्म वेलकम को जो है ग्रहण करे. हम जहाँ कहीं भी हैं, हम ताली बजाकर जो है हमारे स्पीकर को जो है वेलकम कर सकते हैं.
थैंक यू। आइए हम जो है इनके बारे में कुछ जानेंगे। इनका ये जो है मेथडिस्ट कनाडा चर्च अंबरनाथ की जो है ये मेंबर है, और इनका पढ़ाई जो है मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने एमएससी किया है आईटी फील्ड में, और करंटली ये जो है अपने टीचिंग को कर रही है सेंट्रल रेलवे स्कूल और जूनियर कॉलेज एज एन आईटी फैकल्टी जो है वहां पर अपने काम को वो कर रही है। और बहुत कुछ सालों का इन्हें वो टीचिंग में भी एक्सपीरियंस है, और परमेश्वर ने उन्हें बहुत अच्छा एक सेवकाई को दिया है टीचर के रूप में। परमेश्वर का भी धन्यवाद करेंगे, और इनके जुबानी जो है आज हम लोग वचन को सुनने वाले हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, और आगे का समय जो है मैं जूलियट मैडम के हाथ में देना चाहूंगा। थैंक यू। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस संडे के समय टीचर्स डे सेलिब्रेशन के लिए मौका दिया डैनियलैया और पास्टरेट कमेटी मेंबर्स ऑफ सुमंग मेथडिस्ट वितलवाड़ी चर्च के सभी कमेटी मेंबर्स को, पास्टर को धन्यवाद हो। आइए हम आज की आराधना शुरू करते हैं। उससे पहले सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। प्रोफेशनल टीचर्स, दोज हु वर्क इन देयर स्कूल्स, इन देयर कॉलेजेस, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। हम एक वचन पढ़ते हैं और प्रे करते हैं और वाक्य की ओर बढ़ते हैं। John chapter 3 verse 2. As we read John chapter 3 verse 2. Then came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God. For no man can do these miracles that you do, except God be with him. May God bless this verse. आइए हम आँखों को बंद करें और परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। प्रेस लो, प्रेस लो, प्रेस लो। परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की धन्यवाद हो परमेश्वर। इस सुंदर से समय दिया इसलिए आपके नाम की स्तुति हो प्रभु जी। इस आराधना को प्रभु जी आप ही चलाइए प्रभु जी। प्रभु जी इस वचन बांटते हुए प्रभु जी जो मुझे मौका दिया इसलिए आपके नाम की स्तुति हो प्रभु जी। ये वचन बांटते समय प्रभु जी आप मेरे साथ रहेगा प्रभु जी। आगे के पूरी वाक्य को प्रभु जी आप ही लीड करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है प्रभु जी। मैं नहीं बट मेरे मुख के द्वारा प्रभु जी आप पीपल से सबसे बात करोगे, इससे ऐसे विश्वास है हमें प्रभु जी। हर एक व्यक्ति जो ये वचन सुन रहा है प्रभु जी, हर एक के मन में प्रभु जी वो विश्वास प्रभु जी आपके प्रभु जी आपके नाम के द्वारा, इसलिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारी नहीं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा हो, आपके नाम और बड़े, ऐसे हमारे प्रार्थना है प्रभु जी। ईश्वर से प्रार्थना आपके नाम से, मेरे नाम से मांगते सुनो कबूल का पिता, आमीन। First of all, Teachers' Day. I wished all the teachers, right? All the professional teachers. But as we go into being a Christian teacher, or else being a teacher, when we say, ठीक है, in our family itself, हम जो हमारे परिवार है, ठीक है, when we go बच्चे जब स्कूल में मस्ती करते हैं, हम सबसे पहले एक ही बोलते हैं, माँ बाप ने क्या सिखाया, मम्मी पापा ने क्या सिखाया, घर पे ऐसे ही करते हो क्या तुम? So who is that first teacher? The first teacher is nothing but their parents. माता पिता ही बच्चे के फर्स्ट टीचर होते हैं। Right from their birth or else before the birth itself, a mother is a teacher. Whatever she learns, whatever she जो भी वो ग्रहण करते हैं वही बच्चे में आता है, हम ऐसे ही बोलते हैं। और बच्चा वही करता है जो माँ बाप करते हैं या घर पे बड़े करते हैं। आज के इसमें सब माता पिता काम पे जाते हैं तो सेकेंड पर्सन है ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी, वही बच्चे को संभालते हैं। सो बीइंग दैट टीचर, ए टीचर इज़ द वन, हम टीचर का डेफिनेशन क्या देते हैं कि जो टीच करता है, जो सिखाता है, जिससे हम सीखते हैं, ठीक है। अगर हम कॉलेज के हम बोलते हैं कि टीचर है जो टीचर सिखाते हैं, बोर्ड हमें ज्ञान देते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, दे गिव द बुकिश नॉलेज, ठीक है, ये संसार की नॉलेज देता है, ठीक है। But parents, being a Christian parent, most importantly, what is your role? You are the first teacher. Grandparents जो first teacher है, parents जो first teacher है एक बच्चे के लिए, will study about a greatest teacher. So first, I'd like to सभी जो parents है, grandparents है, सभी को happy Teachers Day, क्योंकि they are वो सबसे पहले teacher है एक बच्चे के लिए, ठीक है। Next going with, अगर परमेश्वर ने हम परमेश्वर को एज अ हीलर, एज अ सेवियर, ओके,
एज अ रिडीमर, हम लोग ऐसे ही परमेश्वर को पुकारते हैं मोस्टली। दया करने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, दुख हटाने वाला परमेश्वर है। हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं और हमारे मुख में ऐसे ही वर्ड्स आते हैं। बट आउट ऑफ द 4 गॉस्पल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी परमेश्वर को पुकारा है, रबाई, लॉर्ड, टीचर, यही वर्ड्स हैं उन्हें पुकारते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर। उनके अलावा उन्होंने शायद कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है, कोई PhD, B.Ed, कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है उन्होंने, बट ही इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर, अ टीचर हु हैज़ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, of the whole world, a wisdom, everything. Teacher is our Jesus Christ. आज हम अपने यीशु मसीह को एज अ टीचर, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ है हम वो पढ़ेंगे आज। अ टीचर इज़ अ हम जो पेरेंट्स है, ठीक है, हम जो पेरेंट्स है या फिर हम जो टीचर है, प्रोफेशनल टीचर्स, जहाँ पे भी हम सिखाते हैं, जहाँ पे भी हम जाते हैं, अगर क्रिश्चियन टीचर है तो रिस्पेक्ट कोई ज़्यादा ही देता है, कोई भी हो व्यक्ति रेस्पेक्ट ज़्यादा देता है। क्रिश्चियन टीचर है मतलब बहुत अच्छे होते हैं, बहुत दे आर वेरी स्पिरिचुअल, हम बोलते हैं बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल है, ये लोग बहुत स्पिरिचुअल है, ये क्रिश्चियन टीचर है, ये हेल्पफुल है, उनका नेचर वैसा रहता है, ऐसे उन लोगों का माइंड है, ऐसे लोगों का परसेप्शन है, और उस परसेप्शन को हमें प्रूफ करना है। हाउ वी कैन डू इट, हम कैसे कर सकते हैं। एंड बीइंग द फर्स्ट टीचर ऑफ योर चाइल्ड, बच्चे आपको परमेश्वर ने दिया है, उस बच्चे को आपको ही सिखाना है परमेश्वर की बातें और परमेश्वर में कैसे आगे बढ़ना है। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज आज के इसमें। आज जो हमारा सिचुएशन है, पैंडमिक है, हम अगर डर जाएंगे और रोते रहेंगे और हम अगर परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं रखेंगे। हमें उन्हें सिखाना है कि हमारा ग्रेटेस्ट कौन है, परमेश्वर है, जो हमें हर टाइम हमें लीड करता है और हमारी मदद करता है। एंड वी हैव टू रिलाई ऑन हिम, हमें उन पे भरोसा रखना है। गिविंग आवर ओन माई लाइफ एक्सपीरियंस, मेरे पेरेंट्स ने बहुत, मम्मी पापा हम लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट थे, ऐसे नहीं कि बहुत लाड प्यार से पढ़ाया है। मैंने खुद, हाँ, पापा वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, स्टडीज़ के रिलेटेड, एकेडमिक रिलेटेड बहुत स्ट्रिक्ट थे, और मम्मी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी भी हमें मम्मी पूछती है प्रेयर नहीं करेगा तो क्यों प्रेयर नहीं किया, प्रे करते रहने, मतलब अभी भी उनके अंदर वो है। तो दोनों का बैलेंस हमारे लाइफ में बहुत अच्छे से चला है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए हैं जो उन्होंने मुझे इतने अच्छे से संभाला। शायद इसीलिए आज हम हैं और इस तरह से है कि हम परमेश्वर की वचन बांट रहे हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। दोनों ने हमें हमेशा एवरी वीकडे, दैट इज 7 डेज है, मंडे टू सैटरडे स्कूल्स, सुबह उठो, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, होमवर्क करो, ये था। संडे आते ही मम्मी रोज़ सुबह उठा के हमें चर्च संडे स्कूल में भेजती। तो हमें बहुत कभी कभी लगता था कि मम्मी संडे भी सोने नहीं देती है, हमें चर्च भेजती है, उधर भी जल्दी उठ के जाओ। बट शायद वो टाइम हमारे लिए बहुत कठिन लगता था, बट आज हम उसी के कारण आज जो कुछ है परमेश्वर ने हमें उठाया है। एंड दैट इज़ द टीचर व्हाट दे हैव डन इन माई लाइफ एज अ पेरेंट, व्हाट दे डिड। हम देखते हैं आज परमेश्वर, उन्होंने हमें वो सीख दिया बचपन से कि परमेश्वर पे विश्वास रखो, परमेश्वर से आगे बढ़ो। उन्होंने वो सिखाया, शायद इसी के लिए हम आगे बढ़ पाए और इस तरह से हमने आगे का जीवन अच्छा परमेश्वर ने हमें लीड किया है। यही सीख मैं अपने बच्चे, माय सन, मेरे बेटे को भी वो है 4 इयर्स का, बट मेरे अंदर यही है कि उसे अभी से ही परमेश्वर का बात उसके अंदर डालो, उसके अंदर उसको प्रेयर सिखाओ, उसको गाना सिखाओ, उसको वचन पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि वो आगे जाके वो दुनिया में खो जाएगा। बट बचपन से ही मैंने अगर ये वचन उसके अंदर डाल दिया तो शायद वो रूट हिलेगा नहीं उसका, उस रूट को वो पकड़ के रहेगा। Proverbs 22:6 says, train up a child in a way he should go and when he is old he will not depart from it. बचपन से हम जो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, जो हम उन्हें सिखाते हैं, वो बुढ़ापे तक रहता है। वही ट्रेनिंग उसे काम आता है आगे जाके, हर एक मुसीबत से भी लड़ने के लिए, हर एक स्थिति से, ना कि किसी इंसान पे बिलीव करने, बट टू रिलाई ऑन गॉड। जीसस एज अ ग्रेटेस्ट टीचर, what are the qualities of him as a teacher?
वी हैव स्पेलिंग टीचर का TEACHER. ठीक है, विल सी ईच एवरी क्वालिटी ऑफ दैट टीचर वर्ड. ओके, फर्स्ट T is truth. That is, Jesus is the truth. John 8:31 says, 32 we'll read first. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. What is this truth and how you will know the truth? 8:31 में लिखा है, the second part हम जब पढ़ते हैं, if you continue in my word, then are you my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth will set you free. That is the continuation. When you become my disciple, when you become my शिष्य, that is परमेश्वर का जब हम भक्त बनते हैं, शिष्य बनते हैं, ओके, चेले बनते हैं, तब हमें क्या पता चलेगा? हमें सच्चाई पता चलेगा और हमें क्या होगा? फ्रीडम विल गेट, फ्रीडम मिलेगा. डैनियल ने भी अभी बीच में तो ट्रुथ विल सेट यू फ्री के बारे में, फ्रीडम के बारे में बताया था हमें. दैट ट्रुथ, जीसस को हम जब एक्सेप्ट करते हैं एज अ टीचर, आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ फ्रीडम. हम जीसस को जब एक्सेप्ट करते हैं एज अ टीचर, ही विल लीड अस. वो हमें सिखाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, सच क्या है, झूठ क्या, सब पता चल जाता है हमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सेप्ट हिम एज अ ट्रुथ, कि जीसस इज द रियल ट्रुथ. द सेकेंड वर्ड इज TE. E is enlightenment, enlightening, enlighten. That is, परमेश्वर क्या करता है? एनलाइटन को हम हिंदी में बोलते हैं कि उजागर करना या फिर ज्ञान प्रोवाइड करना. ठीक है, ज्ञान प्रोवाइड करना. द वर्ड्स इटसेल्फ से गॉड इज द प्रोवाइडर ऑफ दैट विजडम. James 1:5. We'll read James 1:5. The verse says, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally. Okay, what does that verse say? James 1:5 says that if any of you lack wisdom, हमारे पास wisdom की कमी है. ठीक है, हमारे बच्चे अगर पढ़ाई में कम है, कमज़ोर है, what we should do, हम क्या करते हैं कि अगर बच्चा पढ़ाई में कम है तो उसको क्लासेस लगवाते हैं, बोर्ड्स के, स्पेशली 10th 12th अगर बच्चा रहता है, अगर हम ऑलरेडी ट्यूशन्स भेजते हैं उसको, बट अगर वो स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट में अगर वीक है, मैथ्स इफ सपोज, तो हम क्या करते हैं? मैथ्स के लिए एक अलग सा ट्यूशन लगाते हैं. साइंस में वीक है, साइंस के लिए एक अलग सा ट्यूशन. ग्रामर में वीक है, लैंग्वेज में, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर चाहिए, इंग्लिश में स्कोर करना, इंग्लिश का आजकल वैल्यू ज़्यादा है. सो व्हाट वी डू, हम लोग क्लासेस में भेजते हैं, जाओ क्लासेस जाओ, इधर जाओ उधर जाओ. बट पहले उन्हें अपने परमेश्वर के पास लेके आइए, पहले परमेश्वर से ज्ञान मांगिए. वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड वो जो ज्ञान देते हैं वो शायद कोई नहीं दे पाएगा, और वो ज्ञान उनको आगे लेके जाएगा, सबसे फर्स्ट आएगा. वी हैव बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते कि पढ़ाई में होशियार नहीं रहते, बट वो मेहनत करते हैं और परमेश्वर पे भरोसा रख के प्रेयर करते हैं, तो परमेश्वर उनको कभी छोड़ते नहीं हैं. वो हमेशा उनको ज्ञान प्रोवाइड करता है, एंड ही इज़ द ओनली गॉड हु प्रोवाइड्स विजडम, हु एनलाइटन्स. और परमेश्वर उनको उजागर करता है, एनलाइटन करता है. ठीक है, दैट इज़ एनलाइटन. गॉड प्रोवाइड्स विजडम. हमें इंग्लिश के लिए बहुत हमारे पापा इंसिस्ट करते थे, इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश सीखना है. पापा का विश था कि जैसे सब लोग बहुत इंग्लिश में ये करते बात करते हैं, तो आप उनके ज़माने में तो इंग्लिश स्कूल पढ़े नहीं, तो हमें बहुत ये करते थे कि आप पढ़ो, आप इंग्लिश बात करो. सो व्हाट ही यूज्ड टू डू इज़ बेस्ट, हमें बाइबल लेके पढ़ने बिठाते थे सबको, भाई बहन को, हमको दोनों को, कि बाइबल पढ़ो ज़ोर ज़ोर से. तो उससे 2 बेनिफिट्स हमें हुए. फर्स्ट, हमने इंग्लिश तो सीखा जैसे पापा चाहते थे, एंड सेकेंड थिंग, हमने बाइबल को भी सीखा, बाइबल भी पढ़ने लगे, तो बाइबल सीखना भी स्टार्ट हुआ, इंटरेस्ट आने लगा. सो बाइबल इज़ द बेस्ट थिंग. गॉड ने प्रोवाइड कर दिया हमें बाइबल भी सीखे एज वेल एज इंग्लिश भी सीखे. सो गॉड एनलाइटन्ड अस. थर्ड, ए इज़ अबंडेंट लाइफ. विथ गॉड यू हैव अबंडेंट लाइफ, किसी चीज़ की कमी नहीं है. If Jesus is your teacher, he will teach you how to survive, how to live, everything. He has abundant. We will provide you knowledge. He will provide you how to work also. He will teach you how to work. Abundant life.
love, care. He will provide you with all the love, all the care, all the wisdom, और हमारे जीवन में बहुतायक रहेगा. Okay. Next is C, compassion. Compassion is दयालु परमेश्वर है. We have seen in n number of times our God is a compassion God. Our Jesus Christ is a compassionate God. Whenever there was people, जो लोग गरीब थे, जो लोग लंगड़े थे, जो अंधे थे, जब भी उनके पास आए, जो लेपर्स थे वो आए, परमेश्वर ने कभी उन्हें तिरस्कार नहीं किया. He had compassion. He was moved with compassion. He had pity on them. हम देखते हैं परमेश्वर को दया आई और परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दिया. ये वर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दयालु. गॉड इज़ द टीचर हु इज़ वेरी 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 दयालु. हम जब स्कूल्स में हमारे टीचर्स होते हैं, ऑल टीचर्स है, ठीक है, सब टीचर्स के अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं, बट जो टीचर हु अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स, परमेश्वर अगर वो बच्चे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अगर वो क्रिश्चियन टीचर है या फिर एनी टीचर, एनी अदर रिलीजन ऑल्सो, अगर उसके अंदर दयालु है तो बच्चे उनके पास ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं. बच्चे उनके साथ प्रॉब्लम शेयर करते हैं, बच्चे उनके साथ फ्री फील करते हैं. अंडरस्टैंड. तो वैसे ही हमारे परमेश्वर इज़ अ वेरी दयालु परमेश्वर. हम उनके पास जाएंगे तो परमेश्वर कभी हमें तिरस्कार नहीं करेंगे. हमें हमेशा दया से, उनकी दया से हमें आगे हर एक रीति से हमें संभाल के चलाते हैं. नेक्स्ट इज H, humble God. He is the most humble God. And the humility we see is परमेश्वर ने अपने चेलों के पैर धोए. जो टीचर है, टीचर कभी शिष्य के झुक कर पैर नहीं धोते. आजकल अगर हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं, अगर टीचर को कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है या फिर टीचर, बच्चे पढ़ के आते हैं, कोई क्लासेस में पढ़ लेता है, ठीक है, यही टॉपिक क्लासेस में पहले हो जाता है तो बच्चे क्रॉस क्वेश्चनिंग चालू कर देते हैं टीचर्स को. ठीक है, टीचर ये ऐसा क्यों है, टीचर ये वैसा क्यों है. तो टीचर को फील होता है कि ये मेरे से कैसे, मतलब आगे चल. वी शाउट एट देम, चुपचाप बैठो, कुछ नहीं, यू डोंट नो, यू सिट डाउन, यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद द सिलेबस, आई हैव स्टडीड दिस. हम ऐसे बोल के बच्चों को कम करा देते हैं, चुपचाप करा देते हैं. बच्चों को भी, मैंने तुमसे ज़्यादा दिन देखा है, तुमसे ज़्यादा दिन ये किया है करके हम पेरेंट्स भी ये करते हैं. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चों के साथ भी हमें हम्बल रहना है. द मोमेंट वी बी हम्बल, बच्चे भी हम्बल हो जाएंगे. अगर हम प्राउडनेस करेंगे, हम प्राइड करेंगे किसी चीज़ पे, तो बच्चे भी वही करेंगे, प्राइड दिखाएंगे. तो फर्स्ट वी विल हम्बल, चाहे हमारे पास कितना कुछ रहने दो. जब परमेश्वर हमारा जो टीचर है वही हम्बल थे, वही नम्र थे. ही हैज़ लेड अ वेरी हम्बल लाइफ. बहुत नम्रता से उन्होंने अपना जीवन जिया है. वही नम्रता से हम भी अपना जीवन जिएंगे. नेक्स्ट E, encouraging and equality. He is a very encouraging God, a very encouraging teacher itself. We see examples wherein disciples को encourage करते हैं कि ये काम आप करो, मेरे नाम से ये काम करो. encouraging. बहुत कम टीचर्स होते हैं जो encourage करते हैं स्टूडेंट्स को, या को बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो encourage करते हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए. पेरेंट्स तो करते ही है, बट टीचर्स वेरी रेयरली दे डू. कभी कभी पेरेंट्स को भी ऐसे होता है कि ये नहीं कर पाएगा, इससे नहीं होता है. नहीं, ऐसे मत बोल. अगर आप अंदर है आपको डर, देन ऑल्सो यू प्रे एंड टीच दैट चाइल्ड ऑल्सो. उसको एनकरेज करो, परमेश्वर से उसे मांगने की वो सिखाना है हमें कि परमेश्वर से मांगो और परमेश्वर तुम्हें आगे लेकर जाएगा. अब परमेश्वर ने हर एक डिसाइपल्स को इक्वली ट्रीट किया है. उसी तरह से हमें भी अपने बच्चे घर पे कितने भी हो, इक्वली हम उन्हें ट्रीट करना है, किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं. दैट इज़ ई क्वालिटी परमेश्वर का, एनकरेजिंग एंड इक्वालिटी. ही ऑलवेज एनकरेजेस अस and that's why we should accept him as a teacher. And the last thing R, that is role model. If I ask, अगर बच्चों को पूछेंगे या फिर किसी को भी पूछेंगे हम कि आपका रोल मॉडल कौन है, we will tell साइंटिस्ट है, कोई एक्टर का नाम बताएगा, कोई एक्ट्रेस के नाम बताएंगे. ठीक है, दिस एक्टर एक्ट्रेसेस आर दिस वर्ल्डली पीपल. they have not achieved anything great and they have not achieved anything to for the other peoples. किसी और के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया है. वो अगर काम कर रहा है तो वो उससे प्रशंसा, आप उनको प्रशंसा मिल रही है आपसे.
हमारा रोल मॉडल कौन है? वी एज अ पेरेंट, हमें फर्स्ट हमारा रोल मॉडल सिलेक्ट करना है एंड फर्स्ट हम जीसस को सिलेक्ट करेंगे एज अ टीचर, बिकॉज ही हैज सो मेनी क्वालिटीज़, देर इज़ नो फ्लॉज इन हिम। कोई कमी नहीं है हमारे परमेश्वर यीशु मसीह में। यीशु मसीह इज़ द बेस्ट टीचर, द बेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वन। He is a true God. He's a God who enlightens us. He's the God who gives us abundant life. He's the God who is compassion God, a very compassionate God. He's a very humble God. He is the God who encourages us, and we will accept him as a role model for these reasons. He is the role model. When we decide as a role model, who is a role model in our house, in our family, in our life, परमेश्वर को अगर हम रोल मॉडल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली बच्चे भी रोल मॉडल किसको सिलेक्ट करेंगे? जीसस क्राइस्ट को। दे फॉलो व्हाट वी डू, हम जो करते वही परमेश्वर बच्चे वही करते हैं। अगर हम जो सिखाते हैं, दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रे, परमेश्वर मुझे पहले सिखाओ कि मैं मेरे बेटा को क्या सिखाऊं। परमेश्वर मुझे ज्ञान दे ताकि मैं उस ज्ञान को मेरे बेटे में फीड कर सकूं, उसके माइंड में लिख सकूं। इज़ वेरी यंग नाउ, 4 years 5 years, एटलीस्ट वो जो छोटा है उसके अंदर अभी से मैं फीड करूँगी वो बातें जी परमेश्वर की, तो आगे जाके वो भूलेगा नहीं, बचपन से वही सीखता जाएगा, आगे भी उसे वही हेल्प आएगा। आइए हम सब पेरेंट्स एज अ टीचर, एज बीइंग अ क्रिश्चियन पेरेंट, एज बीइंग अ क्रिश्चियन टीचर, वी विल टीच अ चिल्ड्रन। पढ़ाई में कमज़ोर है, परमेश्वर से मांगो। कोई गेम में विन होना है, परमेश्वर से प्रेयर करो, परमेश्वर से मांगो। ही विल प्रोवाइड यू, ही विल हेल्प यू। ही इज़ द एनकरेजिंग गॉड। वी विल एनकरेज आवर चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज अ टीचर। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे, और जो भी परमेश्वर ने आज मेरे द्वारा बात किया, परमेश्वर इस वचन को आशीष दे, और इस पे हम लोग एंड एवरीवन, हम जो भी आज जो भी सुन रहे इस वचन को, आज से हम जीसस को एज अ टीचर एक्सेप्ट भी करेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you for your blessings, oh God, Jesus. Thank you for all your grace, oh God, Jesus. Thank you for blessing us, oh Lord Jesus. वो मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आपने इस समय के लिए प्रभु जी आप हमारे साथ थे, ऐसे धन्यवाद स्तुति हो प्रभु जी। वो मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, इस वाक्य को जो हमने पढ़ा है प्रभु जी, एज अ टीचर, परमेश्वर आप जो जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह आप जो हमारे टीचर हो प्रभु जी, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं एज अ टीचर प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी। हम आप हमारे टीचर हो प्रभु जी। हमारे इस बच्चों को प्रभु जी आपके बारे में प्रभु जी और ज्ञान बांटने के लिए आप हमारी मदद कीजिए प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आपके राज्य आए, इसलिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आपकी महिमा में प्रभु राज्य में प्रभु जी महिमा, इसलिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आपके नाम के नाम से मांगते, सुना कबूल का पिता, आमीन। ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ 111ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಿರಿಕ್ ನಂಬರ್ 111. ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ 111ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಚರಣ ಬಿಟ್ಟು ಚರಣ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗುರುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಿಸುವೆನು, ಕರುಣ ದೀಕ್ಷಿಸೆ. ಗುರುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಿಸುವೆನು, ಕರುಣ ದೀಕ್ಷಿಸೆ. ದುರಿತ ಶೋಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ವರವ ಪಾಲಿಸೆ. ದುರಿತ ಶೋಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ವರವ ಪಾಲಿಸೆ.
ತಾಪಗಳನ್ನು ತಾಳಲಾರೆ ಶಾಪ ಮೋಚಕ ಕೂಪ ನರಕ ಪಾರು ಮಾಡು ಭೂಪರಕ್ಷಕ ಭೂಪರಕ್ಷಕ ಗುರುವೆ ನೀನ ಸ್ತೋತ್ರಿಸುವೆನು ಕರುಣಾ ದೀಕ್ಷಿಸೆ ಹೀನಮತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಯಾಯಿತೈ ಹೀನಮತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಯಾಯಿತೈ ದೀನ ಹೃದಯ ವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನ್ಯೂನವಾಯಿತೈ ನ್ಯೂನವಾಯಿತೈ ಗುರುವೆ ನೀನ ಸ್ತೋತ್ರಿಸುವೆನು ಕರುಣಾ ದೀಕ್ಷಿಸೆ ಪ್ರಾತ್ಯವಾಯವನ್ನು ಹರಿಸು ಸತ್ಯನಾಥನೇ ಪ್ರತ್ಯವಾಯುವನ್ನು ಹರಿಸು ಸತ್ಯನಾಥನೇ ಮೃತ್ಯು ಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಿಸು ನಿತ್ಯಕಾಂತನೇ ನಿತ್ಯಕಾಂತನೇ ಗುರುವೆ ನೀನ ಸ್ತೋತ್ರಿಸುವೆನು ಕರುಣಾ ದೀಕ್ಷಿಸೆ ಗುರುವೆ ನೀನ ಸ್ತೋತ್ರಿಸುವೆನು ಕರುಣಾ ದೀಕ್ಷಿಸೆ ಪಾವನಾತ್ಮನಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಷ್ಠನೇ ಪಾವನಾತ್ಮನಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಷ್ಠನೇ ಭಾವವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸು ದೇವತನಯನೇ ದೇವತನಯನೇ ಗುರುವೆ ನೀನ ಸ್ತೋತ್ರಿಸುವೆನು ಕರುಣಾ ದೀಕ್ಷಿಸೆ ಗುರುವೆ ನೀನ ಸ್ತೋತ್ರಿಸುವೆನು ಕರುಣಾ ದೀಕ್ಷಿಸೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. कोई अपना जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरी को मना रहे हैं, वो अपने स्थानों पर जो है खड़े रह सकते हैं. हम उनके लिए विशेष हम लोग प्रार्थना करेंगे और साथ ही इस ऑफरिंग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಕಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಇಟ್ಟು 30, 60, 100ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ನೂತನವಾದ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾದ ಖುಷಿಯನ್ನು, ನೂತನವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು, ಮುಂದಿನ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್.
Happy Teachers Day, Sweetie Akka and Romaka. We are really blessed to have teachers like you who inspire us, who support us throughout, and thank you for loving us and caring us like your own children. May God bless you. हैप्पी टीचर्स डे स्वीटी अक्का रोमाका। थैंक यू, आप लोग ने हमें प्रेयर, स्टोरीज़ और वचन सब आपने अच्छे से सिखाया करके, और थैंक्स कि आप अभी लॉकडाउन में भी आप हमें सिखा रहे हो करके थैंक्स। Wish you a happy Teachers Day to both the Akkas. Thank you for showing us a right way. Happy Teachers Day to all teachers. Happy Teachers Day रोमाका, स्वीटी आका। रोमाका, स्वीटी आका, मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपने हमें प्रभु का वचन सुनाते हुए बहुत सारे स्टोरीज़ बताए, हमें एक्शन सॉन्ग में गाइड किया, अपने अच्छे अच्छे एक्शन सॉन्ग्स बताए। इसके लिए थैंक यू, और स्पेशली थैंक यू क्योंकि आपने हमें इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आपने हमें यूट्यूब के द्वारा, जूम के द्वारा आपने हमें प्रभु के वचन में सिखाया, और आपने जो भी मेहनत किया है इसके लिए बहुत 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 थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। Happy Teachers Day to all the teachers. Thank you for helping in all our problems and queries. Thank you for inspiring us and guiding us. And a very happy Teachers Day to all the teachers. Thank you for all the things you have done for us. May God bless you and keep you all safe and secure. Thank you. रोमाका, स्वीटी अक्का, आप लोग हम लोग के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आप लोग ने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ टीच किया, जीसस के बारे में बोला। आप लोग बहुत स्पेशल, इसके लिए हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू आकाश, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें इतनी सारी स्टोरी, मेमोरी वर्स सिखाने के लिए थैंक यू आकाश। आपने हमें गॉड के राह पे और आगे बढ़ाया, और मैं मांगता हूँ कि आप हमें और भी ऐसे गॉड के राह में आगे ले चलने के लिए मैं मांगता हूँ। और मैं अय्या और अम्मा के लिए भी हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहूँगा क्योंकि वो भी हमें इतना कुछ सिखाते गॉड के बारे में और हमें गॉड के राह पे ले चलते, इसलिए थैंक यू। और मैं आप सबको अपना एंजल्स मानता हूँ जो हमें गॉड के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं। ये एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से। हैप्पी टीचर्स डे आकाश। We love you, Akkas. Happy Teachers Day, Romaka and Sweetie Akka. God bless you and thank you for teaching us. स्वीटी अक्का और रोमाका, आप दोनों मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप दोनों हमारे लिए कितना मेहनत करते और जीसस का हमारे लिए लाते हैं स्टोरीज, इसलिए थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल अय्या और सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। और हमारी लाइफ में टीचर सबसे मेन रोल गाइड करते हैं हमें, और हमारे सबसे मेन रोल टीचर है और हम सबको अच्छे से पढ़ाते हैं। थैंक यू कि स्वीटी अक्का और रोमाका हमारे टीचर बने और हमें गाइड किए। थैंक यू। सबसे पहले मैं स्वीटी अक्का और रोमाका को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो हमें इतने अच्छे तरीके से जीसस के बारे में स्टोरीज़ कहती है, और संडे स्कूल में भी नए नए गीत और गाने सिखाते हैं, और VBS में भी स्टोरी बताते हैं जीसस के बारे में। इसीलिए मुझे स्वीटी अक्का और रोमाका चाहिए। हैप्पी टीचर्स डे रोमाका एंड स्वीटी अक्का, गॉड ब्लेस यू। और हमें इतना अच्छा स्टोरी सिखाने के लिए थैंक यू, और हमें इतना अच्छा एक्शन सॉन्ग सिखाने के लिए थैंक यू, और हमें इतना अच्छा वचन सिखाने के लिए थैंक यू। एंड मैं आप दोनों को बहुत सताता हूँ ना, इसके लिए सॉरी। प्रेज द लॉर्ड। आप हम लोग के अंदर की बुराई निकाल कर यीशु मसीह के बारे में हमारे मन में डालते हो, इसके लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू रोमाका एंड स्वीटी अक्का। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी
Teachers Day, Romaka and Svityaka, and thank you for teaching us action songs and teaching us the word of God and also for guiding us. Thank you. हैप्पी टीचर्स डे रोमाका और स्वीटियाका। मेरे लिए रोमाका और स्वीटियाका मुझे एक्शन सॉन्ग सिखाते, मेमोरी वर्ड सिखाते, बाइबल रीडिंग सिखाते और इसके लिए थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे रोमाका और स्वीटियाका मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि वो मेरे को मेमोरी वर्ड्स और प्रेयर और स्टोरी सिखाते, इसलिए थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे स्वीटियाका रोमाका, आपने हम लोग को स्टोरी और प्रेयर सिखा करके थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे रोमाका और स्वीटियाका मेरे संडे स्कूल टीचर है। वो मेरे को जीसस के बारे में सिखाती है और वो बहुत सारे अच्छे स्टोरीज भी सुनाती है और वो जो भी संडे स्कूल में आते हैं उन सबकी अच्छे से केयर करती है। तो मैं इस टीचर्स डे के टाइम रोमाका और स्वीटियाका को विश करना चाहता हूँ। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू रोमा दीदी, स्वीटी दीदी, टीचिंग एवरीथिंग, बाइबल स्टोरी एंड एक्शन सॉन्ग्स। थैंक यू रोमा दीदी, स्वीटी दीदी, आई लव यू। हैप्पी टीचर्स डे। Bless the Lord. Happy Teachers Day. Thank you teachers for guiding me and teaching me. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day Romaka and Svityaka. God bless you. Praise the Lord everyone. Teachers are a gift from God. Thank you teachers for helping us to grow in God's love. Happy Teachers Day. मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सारे लोगों को जिन्होंने इस सर्विस को स्पेशल बनाने के लिए मेरी सहायता की है। सबसे पहले जो है मैं मिसेस जूलियट प्रवीण बेली का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना समय दिया और बहुत ही सुंदर रीति से जो है
वचनों को हमारे सामने जो है रखा है। आई होप कि हम लोग ने प्रैक्टिकल लेसन्स, एक पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए, एक टीचर जिस रीति से यीशु मसीह बना हुआ है, उस बात को हमने जाना और हमारे जीवन में उस बातों को ग्रहण करके जो है हम भी उसी रीति से अपने बच्चों को वचनों में भी जो है बढ़ाने की जो है अपनी हर एक कोशिश को करें। तो थैंक यू जूलियट, बहुत अच्छे रीति से आपने उस वचन को बांटा है। थैंक यू वेरी मच। और परमेश्वर आपको और आशीष करे और ऐसे ही उनके राज्य में जो है और अधिक रीति से इस्तेमाल करते जाए और आपके जरिए बहुत सारे लोग जो है आशीषमय हो पाए। और विशेष करके जिन बच्चों को भी, जिन स्टूडेंट्स को भी आप पढ़ाते हैं, आपके जरिए उनके जीवन में बहुतायत से परमेश्वर आशीष करे, यह हमारी प्रार्थना है, हमारी दुआ है। थैंक यू। और उसी रीति से मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा फ्लोरेंस और डॉर्कस, जिन्होंने बहुत मेहनत करके, जो संडे स्कूल ने प्रेजेंटेशन किया है, उन्होंने बहुत मेहनत करके एक साथ वीडियो जमा करके मुझे भेजा है। तो थैंक यू। और साथ ही साथ मैं पेरेंट्स को भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उनके हेल्प के बिना ये संडे स्कूल के बच्चे वो वीडियो नहीं भेज सकते थे। तो थैंक यू पेरेंट्स फॉर मेकिंग दिस सर्विस अ स्पेशल इवेंट। बहुत स्पेशल इस सर्विस को बनाया है। थैंक यू ವೆರಿ ಮಚ್। ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೋಣ. ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ನೀನು ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೇಳಿದೀವಿ ರಾಜ, ಆ ಅನುಸಾರ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಂದೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು ಟೀಚರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ತಂದೆ, ಅವರನ್ನು ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುತ್ತಂದೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ತಂದೆ. ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಚನಾನುಸಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ತಂದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರನ್ನು ರಾಜ ನೀನು ನಮಗೆ ರಾಜ ಪ್ರೇರೇಪಿಸು ರಾಜ. ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕದಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸು ತಂದೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ಅಯ್ಯನವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ರಾಜ. ಅವರು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ರಾಜ, ನೀನು ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾಜ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಕೂಟ ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುತ್ತಂದೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ರಾಜ. ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನ್ನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ರಾಜ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆವರೆಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿಂದೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಸಹಾಯಕನಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸವು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತೇಲ್ಲರಿಗೆ.